Very good evening to all of you guys. Now we are moving towards the daily discussion topic for the purpose of essay comprehension, means in descriptive in IBPS mains, as well as group discussion and group exercise. Those who have interview in SBI PO, as well as mains and prelims RC plus interview. Today's first topic is started by Sindhu, then Poonam, then Hema, Neha and Tanvi. बाकी जो भी होंगे. Okay, continue Sindhu. Yes, sir. Good evening, everyone. So today my topic is about the course ahead for Trump Gaza ceasefire plan. So this is about ceasefire that was happening in Gaza and what is the course that is headed by Trump. The main theme means the main context is here. Trump has introduced a 20-point peace plan for Gaza, and it is garnered approval from both Israel and also all the nations, Arab nations, and it is lacking all the input from Palestinian representatives. So the approval and the key stakers are like Arab and Muslim leaders. They are seeing the initial initiative as the potential step for peace, harmony, and all. So crucially, there is an absence of Palestinian representation in the plan's formation. So what is means it has some background story also. I'll say in very short means, and I'll mingle it with the current situation. So the current phase of the Gaza war has begun after the Hamas attack, which was happened in 2023. So mainly Israel aims to destroy Hamas here, and that led to the significant destruction in Gaza for all the people and all. So this plan is highlighting immediate ceasefire in exchange for the release of the hostages, and also the Palestinians are not able to displace all this release of the ceasefires and all. So Gaza is to be placed under the international governance body, and it was overseen by Board of Peace that was chaired by Trump itself, the US president. So the deployment of an international stabilization force ISF, which is in Gaza, while Israeli troops maintain the security perimeter here. There are some criticisms and concerns over here. Many people are criticizing that Palestinian authority is making the uniform reform about this decision, and some are like that is achieving the plans goals and clarity on troops contributions to this ISF and all. There is no assurance about both of that, but the Palestinian resistance will end without any credible path to their statehood itself. So I'm ending this topic like the main conclusion is while the plan is aiming to address the conflict, it is lacking the main importance, the vital elements for the sustainable peace and harmony, and the risk also. So that all these risks are complicating the conflict. I want to ask something from you. On this issue related, there is certain view on the Kerala people also. They are happy related to this. Why? Actually, yes, sir. Because many people are like Christians, no, in Kerala. Okay. That's why they are supporting them. Okay. Okay. Next. Israel's. So it is lacking the important means major elements here for sustainable peace and harmony, and there are also risks which is complicating both the nations, the conflict between both the nations, and further it is not by addressing the core issues. It is not addressing the issues of Palestinian statehood and its representation also. So they are becoming the victims here, and many people are standing by themselves. But still, Israel is a powerful country. No, many people are like timelining. They are achieving their plan goals and all. Thank you. Poonam. Good evening. Good evening. My topic is the maritime signaling after Operation Sindoor. इन दिस टॉपिक मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में जो 1 मई में 2025 में जो एक गतिरोध विश्लेषण किया गया था उसको लेकर है। इसकी शुरुआत ये हुई थी कि ये तब स्टार्ट हुआ जब भारत मतलब पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इंडिया के कुछ हिस्टोरिक को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया है। इस पे भारत की मतलब प्रतिक्रिया ये थी कि ऑपरेशन जो सिंदूर का शुरुआत किया गया ये सिर्फ एक डिफेंस के लिए गतिरोध नहीं था बल्कि और भी उसके लिए संकल्प दिखाए गए। भारत ने अपने जो
इंटरनेशनल सबमरीन्स है INS सिंधुदुर्ग और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए विमान जो है P-81 को तैनात किया है। और ये एक महत्वपूर्ण कदम ये है कि इस समय भारत का जो दक्षिण चीन है उसके साथ फिलीपीन के साथ एक सहयोग एक्सरसाइज किया है, और ये चीन को सीधा डायरेक्ट संदेश है कि मतलब भारत की जो शिक्षा मतलब डिफेंस की जो है वो सिर्फ हिंद महासागर तक ही सीमित नहीं है, वो चीन के प्रभावी जो क्षेत्र है उनको भी चुनौती दे सकता है। और जो कराची और ग्वादर में जो चीन का जो अभी है प्रेजेंस, उसको देखते हुए ये लिया है स्टेप, ये इम्पोर्टेंट हो गया था। भारत ने भी इसकी जवाब मतलब कार्रवाई की है कि उन्होंने भी अपने समुद्र मतलब जो उनका समुद्री ताकत है उसका प्रदर्शन किया हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान ने भी मतलब कराची से ग्वालियर तक के बंदरगाह है वहां पे अपने सोल्जर्स को बढ़ा दिया है, ताकि वो जगह मतलब वो जगह पे हमले से उनको ज्यादा नुकसान ना हो। और पाकिस्तान में अपनी जो हैंग क्लास पनडुब्बियां हैं और मिसाइल्स है उनका भी प्रदर्शन किया है, और उनके साथ साथ वो लाइव फायरिंग अभ्यास भी किया है। तो और मतलब ये दिखाता है कि इसके जो बालाकोट में जो हवाई हमले हुए थे उसके बाद से जो उसका प्रदर्शन किया जा रही है, हवाई प्रदर्शन जो किया गया था वैसे ही मतलब समुद्र वाला भी प्रदर्शन वैसे ही किया जा रहा है। और ये क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान ने जो 1971 के युद्ध से मतलब सबक लेकर अपनी सेना है उसको चीन और तुर्की की मदद से और भी पावरफुल बना रहा है। और क्या बोलते हैं कि इसको ये है कि इसमें एक सोच बदल रही है, और मतलब इससे ऐसे है कि इंडिया जो है अब पूरी तरह से युद्ध नहीं कर रहा है, बट वो एक छोटी छोटी इससे कार्रवाई कर रहा है। तो पाकिस्तान भी इस दुविधा में है कि मतलब अभी एक ऐसी छोटी कार्रवाई को क्या जवाब दे, और इसका जवाब ऐसा है कि अगर देंगे तो युद्ध का खतरा भी बन रहा है। और इसके लिए मतलब ये बताया गया कि बेसिकली कंक्लूजन यही है कि जो अभी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है लड़ाई, वो सिर्फ ग्राउंड या फिर एयर तक ही नहीं है, अब वो एज एन समुद्र इसमें भी चल रहा है। कंक्लूजन। ओके बेटा, थैंक यू। हिमा। Yes, sir. Good evening. Today my topic is this clean energy climate solutions. इंडिया मेकिंग प्रोग्रेस इन क्लियर एनर्जी, पर उनको ज़रूरत है ज़्यादा फाइनेंस सपोर्ट की जो अपने क्लाइमेट टारगेट को अचीव कर सकें। इंडिया ने में ऐड किया है 24.5 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी 2024 में 2024 में, और जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन रखा है ग्लोबली। इंडिया को जरूरत है 1.5 ट्रिलियन डॉलर की बाय 2030 टू स्टे ऑन 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे, बट जो इसका करंट फ्लो है क्लाइमेट फाइनेंस का वो कम है टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन है कि हमें फर्स्ट है डाइवर्सिफाइंग एंड डीपन क्लाइमेट फाइनेंस। इंडिया को जरूरत है कि डाइवर्सिफाई और डीपन क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटेजी लाने की, और स्टार्टिंग विद पब्लिक फाइनेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कि ब्लेंडेड फाइनेंस, जो ब्लेंडेड फाइनेंस है वो ब्रिज बनाएगा जो गैप है पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में। एंड थर्ड वन इज कार्बन मार्केट। इंडिया न्यू कार्बन मार्केट ट्रेडिंग स्कीम जो अनलॉक करेगी न्यू फाइनेंस स्कीम्स को इफ इट इज ट्रांसपेरेंट एंड वेल रेगुलेटेड। ये इसके सॉल्यूशंस हैं। अब है कि इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इंडिया को ज़रूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की अपने क्लाइमेट टारगेट को मीट करने। एंड दूसरा है कि जो प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, बट टू एक्सेस द फाइनेंस जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को है उसको ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। एंड थर्ड वन इज इनोवेटिव फाइनेंस मॉडल्स। इंडिया को ज़रूरत है टू एक्सप्लोर इनोवेटिव फाइनेंस मॉडल जैसे कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइविंग असिस्टेंट टू अनलॉक न्यू फाइनेंस स्ट्रीम्स। तो इसका कंक्लूजन है कि जो बाय एड्रेसिंग द फाइनेंशियल गैप एंड प्रमोटिंग इनोवेटिव फाइनेंस मॉड्यूल्स, इंडिया को एक्सलेट है इट्स क्लियर एनर्जी ट्रांजिशन और अचीव इट्स क्लाइमेट टारगेट्स। यस, ठीक है हिमा, वेरी गुड। नेहा। Good evening. The topic is Old Bihar polls in fewest phase parties urge EC.
इसमें इस बताया गया है इलेक्शन कमीशन मैं एक लाइन इसके बारे में बोल दूं, उसका जो टॉपिक है उसमें मेनली ये मेंशन था कि इलेक्शन कमीशन से ये पार्टी मतलब कि आग्रह कर रही है कि ज़्यादा डेट्स पे इलेक्शंस ना हो, इलेक्शंस जल्दी खत्म हो और वो कम डेट्स पे इलेक्शंस हो। ठीक है नेहा, कंटिन्यू। इसमें बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की चर्चा की गई है। इसमें बिहार में उन्होंने मांगा है कि चुनाव में कम से कम चरणों में कराया जाए। बैठक में पटना में हुई इसके मुख्य चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। आयोग 2 दिन के लिए बिहार यात्रा पर था ताकि चुनाव की तैयारी का जायजा ले सके। पार्टियों का कहना है कि बहुत ज्यादा चरणों में चुनाव कराने की चर्चा कराने से खर्च और समय दोनों बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव छठ पूजा के तुरंत बाद कराया जाए। ऐसा इसलिए ताकि त्योहार के बाद अधिक से अधिक मतदाता वोट डाल सकें। बीजेपी ने कहा कि मतदान के समय महिलाओं की पहचान की ठीक से जांच होनी चाहिए, खासकर उन महिलाओं की जो बुर्का पहन के आती हैं ताकि पहचान हो सके। बीजेपी ने यह सुझाव दिया कि चुनाव से पहले फ्लैग मार्च कराया जाए। फ्लैग मार्च के लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना बनेगी। उनका कहना है इससे कम खर्च होगा और व्यवस्था बेहतर रहेगी। और उन्होंने चुनाव आयोग के इन नामों को हटाने का वजह बताने की मांग की। साथ में उन्होंने 21.53 लाख नए मतदानों के नाम से जोड़े जाने का सवाल उठाया। पार्टियों ने कहा कि चुनाव आयोग के प्रदर्शित और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आयोग के सभी सुझावों को नोट किया और कहा कि वो स्थिति की समीक्षा करें। कुल मिलाकर सभी दल चाहते हैं कि चुनाव तेजी से हो और कम खर्चीला हो। आयोग अब इस पर निर्णय लेगा कि चुनाव कितने चरणों में होंगे और कब होंगे। चुनाव की तारीखों को छठ पर्व के बाद घोषणा करने की संभावना है। बिहार इसका कंक्लूजन है, बिहार की सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव जल्द ही कम चरणों में कराए ताकि खर्च घटे और वेटिंग प्रतिशत बढ़े। साथ ही सुरक्षा, मतदाता सूची और पहचान को लेकर भी जोर दिया गया। अब अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है। थैंक यू। ठीक है बेटा, वेरी डन, वेरी गुड। स्टेबल कॉइन वाले पे बोलना है तभी कंक्लूड करूं? नहीं बोल रही हूँ सर। अगर नहीं तो यार हुआ तो कल बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो छोटा सा ही है। बोलो हो जाएगा। बोलो। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा टॉपिक है आज का, नेशंस मस्ट प्रिपेयर टू डील विद स्टेबल कॉइन, फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें ये जो टॉपिक है आज, ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ये एक ऑनलाइन करेंसी एक टाइप से स्टेबल कॉइन होती है, एक ऑनलाइन करेंसी होती है डिजिटली। थोड़ा इसमें कंफ्यूज करते हैं कि जैसे हमारे साथ में सीबीडीसी है आरबीआई की, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सीबीडीसी में यूपीआई में क्या डिफरेंस होता है। डिजिटल करेंसी होती है जो हमारे पास में नोट्स और कॉइन्स होता है उनको डिजिटली कन्वर्ट करना, एंड यूपीआई होता है एक टाइप से कि पेमेंट का सिस्टम है, पेमेंट का मेथड है। वो जो हमारा पैसा होता है वो एक अकाउंट में सेव होता है। यूपीआई में सीबीडीसी में डिफरेंस होता है। तो इसमें स्टेबल कॉइन के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये आर्टिकल लिखा है। ये जो स्टेबल कॉइन्स है ये काफी प्रिवलेंट हो चुके हैं फिलहाल के लिए, एंड ये क्रिप्टो करेंसी के जैसे ही है वैसे तो, बट एक ये चीज है कि स्टेबल है, इनकी वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। जैसे बिटकॉइन एकदम से मार्केट उठा देता है, एकदम से मार्केट गिर जाती है, वैसी वाली चीज नहीं है। इसमें स्टेबल रहती है मार्केट। और ये स्टेबल कॉइन ऐसे होते हैं जो किसी करेंसी से लिंक होते हैं, जैसे कि यूएसडी करेंसी से लिंक हो गई या फिर रुपीज से लिंक हो गई। एक टाइप से डिजिटल वर्जन होता है जो हमारे पास में करेंसी होती है, जो कैश में होती है उसी का डिजिटल वर्जन होता है एक टाइप से। और इसको रेगुलेट करने का, तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कंक्लूजन में ये दिया है, फिर अपना सजेशन दिया है कि हमें भी स्टेबल कॉइन्स की तरफ देखना चाहिए। अगर हम ये देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड इस चीज को देख रहा है तो हम पीछे रह जाएंगे, हम लेफ्ट आउट करेंगे उस चीज से। एंड इसके लिए इन्होंने प्रेज किया है कि आरबीआई ने सीबीडीसी को लॉन्च किया हुआ है इसी के टूवर्ड्स। अगर हम इसका अल्टरनेट देखें तो आरबीआई ने ऑलरेडी सीबीडीसी लॉन्च किया हुआ है, बट उसको थोड़ा सा हमें अपग्रेड करना पड़ेगा और उसमें रिफॉर्म्स वगैरह लेके आने पड़ेंगे ताकि लोग उसको यूज करें। बस यही था सर इसका मेन ठीक कंक्लूजन, यही था। है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है स्टेबल कॉइन्स बहुत अच्छा टॉपिक है रिसेंट के लिए।
अबे रुक जाओ, जाना मत जरा, श्रुति, प्रियंका और तन्वी, बाकी लोग भी सुन लेंगे जरा। मैं जीएस कहाँ से ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जरा एक बार मैं पूछूं और थोड़ा आइडिया दे दूं मेंस के लिए। स्टेबल कॉइन, सीबीडीसी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, ये सब ऑलवेज जीडी का टॉपिक हो सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस में आ सकता है। ओके गाइज, माय नंबर इज 7503235358 फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आप अपना IBPS का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। जिनका क्लियर नहीं भी हुआ है वो भी, जिनका क्लियर हुआ है वो भी। लिंक मैंने अपने YouTube कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया है। धन्यवाद।